आज हमने पढ़ना है फैक्टोरियल डिजाइन। In factorial design, researchers manipulate two or more independent variables simultaneously to observe their effects on the dependent variable. तो फैक्टोरियल डिजाइन में दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स हैं, उनकी मैनिपुलेशन की जाती है उनका इफेक्ट देखने के लिए डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर। This design is useful when there are more than two independent variables called factor to be tested. तो ये डिजाइन तब इफेक्टिव होता है जब एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो दो से ज्यादा हो या दो उनको फैक्टर कहते हैं। For example, a researcher wants to observe the effect of two different protocols of Foxcare on prevention of ventilator-associated pneumonia when performed at different frequencies in a day. एक रिसर्चर जो है वो माउथ केयर के प्रोटोकॉल को देखना चाह रहा था वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया के प्रिवेंशन में। This design also facilitates the testing of several hypotheses at a single time. तो ये डिजाइन इस डिजाइन की वजह से हम मोर देन वन हाइपोथेसिस है उसको टेस्ट कर सकते हैं सिंगल टाइम के ऊपर। Typical factorial design incorporate 2 by 2 or 2 by 3 factorial, but it can be in any combination. 2 by 2 हो सकता है या 2 by 3 हो सकता है और या इससे ज़्यादा 2 by 4 भी है। डिफरेंट कॉम्बिनेशन में फैक्टोरियल डिज़ाइन जो है वो हो सकता है। The first number alpha refers to the independent variable or the type of experimental treatment, and second number beta refers to the level or frequency of the treatment. पहले जो अल्फा है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को शो कर रहा है और बीटा जो है वो उसकी लेवल और या फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रीटमेंट को शो कर रहे हैं। जैसे ये अल्फा 1 और अल्फा 2 ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और बीटा 1 जो है वो लेवल है इसके। तो ये जो है ये 2/3 के 2 को ना 3 रोज। ठीक है, तो इस तरह से 2/2 भी हो सकता है, 2/3 भी हो सकता है, 2/4 भी हो सकता है। रिपीट कर रही हूँ मैं। पिक्टोरियल डिजाइन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट देखा जाता है डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर और ये तब यूज होता है जब हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल 2 या मोर देन 2 जिसको कहते हैं पिक्टोरियल डिजाइन। इसमें क्लोरोहेक्सिडाइन और सिनाइन जो है वो 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जिनका इफेक्ट देखना 4RD 6RD और 8RD। Next example of factorial design. A university wants to assess the starting salaries of their MBA graduates. The study looked at graduates working in 4 different employment areas: accounting, management, finance, and marketing. In addition to look at the employment sector, the researcher also looked at the gender. In this example, the employment sector and gender of the graduate are the independent variables and starting salaries are the dependent variables. So this would be considered a 4/2 factorial design. ठीक है, इसमें वो 4 फैक्टर आ गए इंडिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पे और सेक्टर और जेंडर जो है वो उस पर इफेक्ट देखते हैं। तो ये 4/2 जो है फैक्टोरियल डिजाइन हो गया। 4 एरियाज आ गए अकाउंटिंग, मैनेजमेंट, फाइनेंस एंड मार्केटिंग और एम्प्लॉयमेंट सेक्टर एंड जेंडर जो है उसके ऊपर इसका इफेक्ट देखना। तो ये 4/2 फैक्टोरियल डिजाइन हो गया।
Next example, a researcher wants to determine how the amount of sleep a person gets the night before an exam impacts performance on a math test the next day. कि स्लीप कितना सोता है स्टूडेंट है और उसका इफेक्ट क्या होगा, परफॉर्मेंस क्या होगी उसकी मैथ टेस्ट में उसके अगले दिन। तो ये उसका इफेक्ट देखना स्लीप का। But the experimental also known that many people like to have a cup of coffee or two in the morning to have them getting going. और कुछ लोग जो है वो कॉफी पीते हैं अपने आप को एक्टिव रखने के लिए। So the researcher decide to look at how the amount of sleep and the amount of caffeine influence test performance. So researcher देखना चाह रहे हैं sleep का इफेक्ट और caffeine का इफेक्ट टेस्ट परफॉर्मेंस पे। The researcher then decide to look at three levels of sleep: 4 hours, 6 hours and 8 hours. Three levels हैं sleep के वो देखना चाह रहे हैं और only two level of caffeine consumption, 2 का versus no coffee और 2 level है caffeine के। तो ये 3/2 factorial डिजाइन हो गया। 3 sleep के आगे 4 hours, 6 hours and 8 hours और 2 caffeine के आगे 2 cup versus no cup coffee। तो ये 3/2 factorial डिजाइन हो गया। समझ आ गया सबको फैक्टोरियल डिजाइन? नेक्स्ट है रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिजाइन। Control of inherent differences between experimental subject and differences in experimental conditions is one of the difficult problems faced by researchers in biological sciences. जो डिफरेंसेस हैं उनको कंट्रोल करने की जो है ना एक प्रॉब्लम है वो फेस करनी पड़ती है रिसर्चर को when there are large number of experimental comparison groups. The randomized group design is used to see homogeneity among selected different groups. तो क्या किया जाता है, इसको रैंडमाइज ब्लॉक डिजाइन बना दिया जाता है और उनको होमोजेनियस ब्लॉक में डिवाइड कर दिया जाता है। हेट्रोजेनिटी को खत्म करके होमोजेनिटी में चेंज कर दिया जाता है। This is simple method to reduce the variability among the treatment group by a more homogeneous combination of the subjects through randomized block design. तो रैंडमाइज ब्लॉक डिजाइन के थ्रू हम हेट्रोजेनिटी को खत्म करके तो होमोजेनियस ब्लॉक बना देते हैं। For example, a researcher wants to examine the effect of three different antihypertensive drugs on patient with hypertension. एक रिसर्चर जो है वो 3 डिफरेंट एंटी-हाइपरटेंसिव ड्रग का इफेक्ट देखना चाह रहे हैं हाइपरटेंशन के पेशेंट्स के ऊपर। In this example, to ensure homogeneity among the subjects and their treatment, researcher randomly placed the subjects in homogeneous groups like patient with primary hypertension, diabetic patient with hypertension and renal patient with hypertension। तो क्या किया रिसर्चर ने उनको ब्लॉक्स बना लिया, हर ब्लॉक में होमोजेनिटी को मेंटेन रखा। जैसे
पेशेंट विद प्राइमरी हाइपरटेंशन के ग्रुप में सारे पेशेंट वही हैं जिनको के प्राइमरी हाइपरटेंशन है। इस तरह नेक्स्ट ग्रुप में डायबिटिक पेशेंट विद हाइपरटेंशन है और फिर उसके नेक्स्ट ग्रुप में रीनल पेशेंट विद हाइपरटेंशन है। तो इनको होमोजेनियस ब्लॉक में चेंज कर दिया। तो ये सारे हेट्रोजेनियस थे लेकिन इनको फिर होमोजेनियस बना दिया गया, ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया और ब्लॉक्स में पार्टिसिपेंट को रैंडमाइजेशन के थ्रू सेलेक्ट किया। समझ में आ गया रैंडमाइज ब्लॉक डिजाइन? हेट्रोजेनिटी को खत्म कर दिया गया, होमोजेनिटी में चेंज कर दिया गया। नेक्स्ट है क्रॉसओवर डिजाइन। हाँ, सब्जेक्ट तो डिफरेंट ही है, आपके पार्टिसिपेंट्स जो है वो डिफरेंट ही है, लेकिन उनके कंप्लेन एक है ना, वो सिर्फ प्राइमरी हाइपरटेंशन की है और दूसरे ब्लॉक में सारे सब्जेक्ट तो डिफरेंट ही है लेकिन उनकी कंप्लेन सेम है, इसलिए वो डिजीज के हिसाब से होमोजेनियस है, वैसे तो वो डिफरेंट ही है सारे सब्जेक्ट। नेक्स्ट आ जाता है क्रॉसओवर डिजाइन। In this design, subjects are exposed to more than one treatment, where subjects are randomly assigned to different order of treatment. इसमें एक सब्जेक्ट को एक से ज़्यादा ट्रीटमेंट की तरफ एक्सपोज कराया जाता है। It is also known as repeat wire design, इसको repeat wire design भी कहते हैं। This design is more efficient in establishing the highest possible similarity among subjects exposed to different conditions, where groups compared obviously have equal distribution of characteristics. तो इसमें एक सब्जेक्ट को एक से ज़्यादा ट्रीटमेंट की तरफ एक्सपोज कराया जाता है और फिर आपस में कंपेयर किया जाता है। So crossover design is considered as an extremely powerful research design. Sometimes it is not effective because when subjects are exposed to two different conditions, their response of the second condition may be influenced by their experience in the first condition. तो ये मोस्ट पावरफुल डिजाइन है, लेकिन जब एक सब्जेक्ट को दूसरे ट्रीटमेंट की तरफ एक्सपोज कराया जाता है तो उसके अंदर कुछ जो है इफेक्ट पहले ट्रीटमेंट का रह जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल है, when we are comparing the effectiveness of chlorhexidine mouth-care protocol on group 1 and saline mouth-care protocol on subject of group 2. Later the treatment is swapped where group 1 received the saline mouth-care and 2 received the chlorhexidine.
In such studies, subjects serve as their own control. पहले एक ग्रुप को क्लोरोहेक्सिडिन से एक्सपोज कराया गया और फिर उसको सेलाइन से, तो ये क्रॉस ओवर हो गया। इस तरह पहले ग्रुप 1 को सेलाइन से कराया गया, फिर क्लोरोहेक्साडाइन से, तो ये क्रॉस ओवर हो जाता है इस तरह से कि पहले जो उनसे ट्रीटमेंट एक्सपोज कराया, बाद में दूसरे ट्रीटमेंट के साथ एक्सपोज करा लिया गया। तो जब दूसरे ट्रीटमेंट के साथ एक्सपोज कराया जाता है तो उसमें पहले का जो है वो इफेक्ट बाकी रहता है। जैसे ये ट्रीटमेंट, पहले स्टडी पार्टिसिपेंट ने इनको रैंडमाइज कर लिया, ट्रीटमेंट दिया और आधे को ट्रीटमेंट बी दिया, फिर थोड़ा वाश आउट पीरियड रखा, उसके बाद जिसको ट्रीटमेंट ए मिल रहा था उसको ट्रीटमेंट बी दिया और जिसको ट्रीटमेंट बी मिल रहा था उसको ट्रीटमेंट ए कर दिया। तो इस तरह से ये क्रॉस ओवर हो गया। ट्रीटमेंट ए को ट्रीटमेंट बी दे दिया, ट्रीटमेंट बी को ट्रीटमेंट ए दे दिया। समझ में आ गया क्रॉस ओवर? अभी तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। क्रॉसओवर का एडवांटेज ये है कि मोस्ट पावरफुल डिजाइन है और इसमें हर ग्रुप अपना कंट्रोल खुद ही सर्व कर रहा होता है। कोई सेपरेट से कंट्रोल ग्रुप नहीं चाहिए होता, बल्कि हर ग्रुप अपना खुद ही कंट्रोल ग्रुप होता है। Next randomized control trial. The randomized control trial is noted to be strongest methodology because of the elements of the design that limit the potential for bias. आरसीटी को जो है स्ट्रॉन्गेस्ट मेथडोलॉजी कंसीडर किया जाता है क्योंकि इसमें बायसेस जो है वो कम से कम होती है। Subjects are randomized to the treatment and control group to reduce selection bias. Subjects को treatment group और control group में randomization के थ्रू जो है वो select किया जाता है, तो इससे selection bias जो है वो नहीं होती। In addition, blinding or withholding of study information from data collected, participants and their healthcare providers can reduce the potential for bias. इसके अलावा इसमें ब्लाइंडिंग की जाती है, मतलब पेशेंट को भी नहीं पता होता कि वो ट्रीटमेंट रिसीव कर रहे हैं या प्लेसिबो होता है इनर्ट सब्सटेंस, जिसका कोई इफेक्ट नहीं होता। तो पार्टिसिपेंट को भी नहीं पता होता कि वो कंट्रोल ग्रुप में है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में, इसको कहते हैं सिंगल ब्लाइंडिंग। और डबल ब्लाइंडिंग में रिसर्चर को भी नहीं पता होता कि कौन सा पार्टिसिपेंट जो है वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में और कौन सा कंट्रोल ग्रुप में, इसको कहते हैं डबल ब्लाइंडिंग, मतलब डाटा कलेक्टर को भी नहीं पता होता। और ट्रिपल ब्लाइंडिंग कहते हैं जिसमें एनालिसिस जो कर रहा होता है उसको भी नहीं पता होता। तो इसमें ब्लाइंडिंग इंश्योर की जाती है, इसलिए स्ट्रॉन्गेस्ट मेथडोलॉजी कंसीडर किया जाता है।
RCTs, when appropriately conducted, are considered the gold standard for determining the effectiveness of healthcare interventions. RCTs जब properly conduct किए जाते हैं तो वो गोल्ड स्टैंडर्ड कंसीडर किया जाता है हेल्थ केयर इंटरवेंशन का। RCTs may be carried out in a single setting or in multiple geographic locations to increase sample size and obtain a more representative sample। RCTs जो है वो डिफरेंट सेटिंग्स पे कंडक्ट की जाती है और डिफरेंट लोकेशन पे और डिफरेंट सैंपल साइज के साथ जो है वो कंडक्ट की जाती है। The initial RCTs conducted in medicine demonstrated inconsistencies and biases। जो सबसे पहले RCTs कंडक्ट की गई उसमें बहुत सारे inconsistencies थी और biases थी। Consequently, a panel of expert, clinical trial researcher, medical journal editor, epidemiologists and methodologists developed guidelines to assess the quality of RCTs report। तो फिर एक पैनल बैठा एक्सपर्ट्स का जिसमें कई डिफरेंट रिसर्चर्स थे, एपिडेमियोलॉजिस्ट थे, मेथोडोलॉजिस्ट थे। उन्होंने कुछ गाइडलाइन बना के दी कि आरसीटी को उन गाइडलाइन की बेस पे रिपोर्ट करना चाहिए। This group initiated the standardized reporting of trials। तो इस ग्रुप ने जो आरसीटीज बनाई गाइडलाइन बनाई उसको कहते हैं सोट, स्टैंडर्डाइज्ड रिपोर्टिंग ऑफ ट्रायल। Statement that was revised and become the consolidated standards for reporting trial। जो बाद में कंसोर्ट बन गई, कंसोलिडेटेड स्टैंडर्ड्स फॉर रिपोर्टिंग ट्रायल। ठीक है, तो गाइडलाइन को कंसोर्ट की गाइडलाइन को फॉलो करके आरसीटीज कंडक्ट की जाती है। This current guideline include a checklist and flow diagram that might be used to develop report and critically appraise published RCTs। तो इसमें फ्लो डायग्राम है और चेकलिस्ट है जो कि यूज की जाती है आरसीटीज को कंडक्ट करने के लिए और इन्हीं गाइडलाइन की बेस पे जो आरसीटीज को रिपोर्ट किया जाता है। An RCT needs to include the following elements। The study was designed to be a definitive test of the hypothesis that the intervention caused the defined dependent variables or outcome। अब ये है कि इसमें डेफिनेट टेस्ट होता है हाइपोथेसिस का और इंटरवेंशन जो है की जाती है देखने के लिए इफेक्ट ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर। The intervention is clearly described and its implementation is consistent to ensure intervention fidelity। और इंटरवेंशन है वो क्लियरली डिस्क्राइब करनी चाहिए, मतलब कोई भी ट्रीटमेंट जो आरसीटीज में दे रही है, कोई भी ड्रग दे रही है तो उसकी डोज, उसकी टाइमिंग, उसका रूट, सारी चीजें जो है वो क्लियरली डिस्क्राइब होनी चाहिए। The study is conducted in a clinical setting, not in a laboratory। और ये जो स्टडी है क्लिनिकल सेटिंग में कंडक्ट की जानी चाहिए, लैब में। The design meets the criteria of an experimental study। और डिजाइन का क्राइटेरिया जो है वो एक्सपेरिमेंटल स्टडीज का होना चाहिए, उसको मीट करना चाहिए।
Subjects are drawn from a reference population with the use of clearly defined criteria. Baseline stats are comparable in all groups included in the study. Selected subjects are then randomly assigned to treatment and comparison groups. Thus, the term randomized controlled trial. इसमें subjects हैं वो क्लियरली डिफाइंड एरिया के थ्रू जो है वो सेलेक्ट किए जाते हैं और बेसलाइन स्टैट्स है वो कंपेरेबल होती है इन ऑल ग्रुप इंक्लूडेड इन द स्टडी। सिलेक्टेड सब्जेक्शन को रैंडमली असाइन किया जाता है ट्रीटमेंट ग्रुप में और कंट्रोल ग्रुप में। आवाज आ रही है मेरी सबको? Okay, the study has internal validity, high internal validity, and the design is rigorous and involves a high level of control of potential source of bias that will rule out possible alternative causes of the effect. The design may include blinding to accomplish this purpose. With blinding the patient, those providing care to the patient or the data collector are unaware of whether with blinding the patient, those providing care to the patient or the data collector are unaware of whether the patient is in experimental group or in control group. तो जैसे मैंने पहले बताया था कि इसमें ब्लाइंडिंग की जाती है और ब्लाइंडिंग की वजह से इसकी इंटरनल वैलिडिटी जो है वो बहुत हाई होती है। इसमें सिंगल ब्लाइंडिंग भी की जाती है, डबल ब्लाइंडिंग भी और ट्रिपल ब्लाइंडिंग भी की जाती है। सिंगल ब्लाइंडिंग के पेशेंट को भी नहीं पता होता वो ट्रीटमेंट ग्रुप में या कंट्रोल ग्रुप में। डबल ब्लाइंडिंग में डाटा कलेक्टेड को कुछ नहीं पता होता और थर्ड ट्रिपल ब्लाइंडिंग में डेटा एनालिसिस को भी नहीं पता होता। तो इस तरह से इसमें एक रैंडमाइजेशन की जाती है, दूसरा बायसनेस को प्रिवेंट करने के लिए ब्लाइंडिंग की जाती है, तो इंटरनल वैलिडिटी जो है वो हाई होती है। Next, the dependent variables or outcomes are measured consistently with quality measurement method और dependent variables और outcomes हैं उनको quality measurement method से observe किया जाता है। The intervention is defined in sufficient detail so that clinical application can be achieved. और इंटरवेंशन जो है उसकी फुल डिटेल्स है वो बताई जाती है। जैसे मैंने बताया कि कोई ड्रग देना है तो उसकी डोज कितनी होगी, उसकी टाइमिंग, उसका रूट, ये सारी चीज़ें जो है वो क्लियरली बताई जाएंगी इंटरवेंशन की टाइमिंग भी। The subject lost to follow-up are identified with the rationale for not continuing the study और जो सब्जेक्ट छोड़ के जाना चाहें स्टडीज को उनका रैशनल दिया जाएगा कि क्यों वो स्टडी को छोड़ के जाना चाह रहे हैं। The attrition from the experimental and control group needs to be addressed as well as the overall sample attrition और जो है वो एड्रेस जो लॉस है उसको एड्रेस किया जाएगा। The study has received external funding sufficient to
allow a rigorous design with a sample size adequate to provide a definite list of the intervention। तो जो स्टडी ने एक्सटर्नल फंडिंग रिसीव की है उसका भी बताया जाएगा कि एक्सटर्नल फंडिंग जो है सफिशिएंट थी उस टेस्ट को इंटरवेंशन के लिए यहाँ की नहीं, ये सारी चीज़ें जो है वो गाइडलाइन में बताई गई है। ये है वो फ्लो डायग्राम कंसोर्ट की जिसको फॉलो करके आरसीडीज जो है वो कंडक्ट किए जाते हैं। सबसे पहले सेस फॉर एलिजिबिलिटी, फिर एक्सक्लूड हो गए जो नॉट मीटिंग दी इंक्लूडिंग क्राइटेरिया और डिक्लाइन टू पार्टिसिपेट, जिनकी कोई चीफ रीजन थी पार्टिसिपेट नहीं किया। फिर जो विलिंग थे उनको रैंडमाइज किया, रैंडमाइज करके ट्रीटमेंट ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप में उनको डिवाइड कर दिया। allocated to intervention, received allocation intervention and did not receive allocation intervention। फिर उसमें लॉस टू फॉलो अप और जो फॉलो अप हो गए जिन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया उनको निकाल दिया और जो बाकी बचे तो फिर उनको एनालाइज कर दिया। तो ये है एक फ्लो डायग्राम। ट्रायल कंडक्ट करने से पहले ट्रायल को रजिस्टर भी कराया जाता है। तो साइट है www.clinicaltrial.gov। ये फ्री रजिस्ट्रेशन होती है, इस साइट पे आप जाएं और जब ट्रायल हो चुका है तो उसको रजिस्टर भी कराया जाता है। ये इस तरह से इसमें नाम लिखते हैं और एक नंबर देते हैं आपको, फिर ये इस तरह से रजिस्टर्ड हुआ सामने आ जाता है। क्लिनिकल ट्रायल क्लियर। इसमें हम असेस करेंगे सबसे पहले ये कंसोर्ट की जो फ्लो डायग्राम है असेस करेंगे एलिजिबिलिटी और फिर जो एक्सक्लूड होंगे उनको निकाल देंगे, फिर बाकी जो बचेंगे उनको रैंडमाइज करेंगे इंटरवेंशन ग्रुप में और कंट्रोल ग्रुप में और फिर उनका जो है वो देखेंगे कि कौन लॉस को फॉलो अप है, फिर जो बाकी बच जाएंगे उनको एनालाइज करेंगे। आवाज आ रही है मेरी सबको? उसके बाद अब पढ़ना है हमने वीडियो और ऑडियो दोनों आ रही है। फॉजी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन करना है हमने। फॉजी एक्सपेरिमेंटल is an experiment empirical intervention study used to estimate the causal impact of an intervention on target population without random assignment। तो जैसे कल भी मैंने बताया था फॉजी एक्सपेरिमेंटल में रैंडम असाइनमेंट नहीं होती और लेकिन इसमें ट्रीटमेंट ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप जो है वो दोनों ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। Cause experimental research shares similarities with the traditional experimental design
or randomized controlled trial, but it specifically lacks the element of random assignment to treatment or control group. तो इसमें सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जैसी ही होती हैं, एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन की तरह ही होती हैं, बस इसमें जो रैंडमाइजेशन का एलिमेंट जो है वो मिसिंग होता है। इसकी दो टाइप्स हैं, नॉन रैंडमाइज्ड कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन और टाइम सीरीज डिज़ाइन। It is also known as non-equivalent control group design, or this design is identical to the pre-test, post-test or control group design, except there is no random assignment of subject in experimental and control group. ये प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट कंट्रोल ग्रुप डिजाइन जैसा है, लेकिन इसमें रैंडम असाइनमेंट जो है वो नहीं होती। इन दिस डिजाइन एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप आर सिलेक्टेड विदाउट randomization and dependent variables are observed in experimental as well as control group before the intervention. Later, the experimental group receives treatment, and after the post-test observation of dependent variables is carried out for both the group to assess the effect of treatment on experiment, और उसके बाद ट्रीटमेंट अप्लाई किया जाता है। ये प्री टेस्ट या फिर ट्रीटमेंट और ट्रीटमेंट के बाद दोनों एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप दोनों का पोस्ट टेस्ट किया गया। ये भी रैंडम असाइनमेंट की पार्टिसिपेंट को कंट्रोल ग्रुप में और इंटरवेंशन ग्रुप में, फिर इंटरवेंशन ग्रुप को इंटरवेंशन दी और बाद में दोनों का पोस्ट इंटरवेंशन टेस्ट किया गया। Here a time series design for the experimental approach involves time series data in which researcher observe one group of subjects repeatedly both before and after the administration of treatment। तो time series design में वो repeatedly जो है वो observe करते हैं। चलिए अटेंडेंस लगा दी अपनी।